السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا جوہری۔ دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ دیہی علاقوں میں مکانات کے تعمیراتی کاموں کو نہ روکا جائے، قریبی تالابوں سے عوام کو مفت ریتی، کلکٹرز کو ہدایت، احکامات جاری۔ کسانوں کو نظر انداز کیا گیا تو چلو سیکریٹریٹ پروگرام کرنے، ہریش راؤ کا انتباہ۔ ریونت ریڈی سیاسی گیٹ نہیں بلکہ کسانوں کے لیے گیٹ کھولیں۔ جھوٹی خبریں شائع کرنے والے یوٹیوب چینلز پر کارروائی کی جائے، کرمنل مقدمات اور حد کے عزت کا دعویٰ پیش کرنے KTR کا انتباہ۔ اور ملے پلی میں ایک مکان میں سرقے کی واردات، 16 تولے طلائی زیورات، 2.5 لاکھ روپے نقد رقم اور 3,000 روپے کی بیرونی کرنسی کا سرقہ، پولیس مصروف تحقیقات۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ حکومت نے دیہی علاقوں میں مکانات کی تعمیر کے دوران ریتی کو لے کر مسائل پیدا نہ ہوں، اس لیے اہم فیصلہ لیتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں۔ مقامی سطح پر درکار ریتی کو دینے کی ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے۔ دیہی علاقوں میں تعمیری کام نہیں روکنا چاہیے، بنیادی سطح پر ریتی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مختلف دیہاتوں سے عوام مکانات کی تعمیر کے لیے ضروری ریتی لے جانے کی منظوری طلب کی تھی، جس کو نظر میں رکھتے ہوئے حکومت نے منظوری دی ہے۔ دیہی علاقوں میں تعمیراتی کاموں میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور بنیادی سطح پر درکار ریتی کو فراہم کرنے احکامات دیے ہیں۔ قریبی تالاب سے مفت ریتی دینے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ اگر قواعد کی خلاف ورزی کی گئی تو ذمہ دار پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنی قیامگاہ پر شاعر، ادیب اور کلاکاروں سے ملاقات کی۔ ریاستی گیت جے جے تلنگانہ گیت لکھنے والے اندرشری اور ان کی اہلیہ نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ان کو تہنیت پیش کی۔ وزیر اعلیٰ سے مشہور شاعر سدالا اشوک تیجا نے بھی خیر سگالی ملاقات کی۔ بسم اللہ خاں ایوارڈ حاصل کرنے والے بھاسکر پی راج کمار نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ان کو بھی تہنیت اس موقع پر پیش کی۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس حکومت میں کسانوں کی مشکلات کو نظر انداز کیا گیا تو چلو سیکریٹریٹ پروگرام کیا جائے گا۔ انہوں نے بہت جلد عوامی تحریک کا
कहा कि आगाज होगा। पालाकुर्ती में ज़रूरी पानी मौसर अंदाज में न मिलने पर किसान परेशान हैं। फसलें सूख गई हैं। गैर मौसमी बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। हरीश राव ने कहा कि फी एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सियासी पार्टियों के लिए गेट खोल रहे हैं, किसानों के लिए गेट खोलें। हैदराबाद में सियासत करना छोड़कर किसानों से मुलाकात करें, हालात का जायजा लें। उन्होंने कहा कि किसान हलाक हो रहे हैं, कम से कम उनको हिम्मत दिलाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में 180 किसानों ने खुदकुशी की है। వేలాది ఎకరాల్లో పంట ఎండిపోయింది। నిజంగా ఈ తండాలో ఉండే అక్కా చెల్లెల బాధ వింటా ఉంటే కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తా ఉన్నాయి। ఈ ఒక్క ఊర్లోనే వందలాది బోర్లు వేసినారు। ఒక్కొక్క రైతు 6 బోర్లు 4 బోర్లు 2 బోర్లు వేసి ఆశ కోసం నీళ్లు వస్తాయేమో అని ప్రయత్నం చేసి మేము అప్పుల పాలైనామని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క బాధలు చూస్తూ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా రైతుల్ని ఆదుకోవడంలో ఈరోజు విఫలమైందనేటువంటిది అర్థమవుతా ఉంది। ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గోదావరి నదిలో నీళ్లున్నా కూడా దేవాదుల ద్వారా నీళ్లు పంపింగ్ చేసి రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వడంలో ఇవాళ పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది। ఇవాళ వాళ్ళు 6 గ్యారెంటీల్లో రైతుల కోసం చెప్పిన ఏ ఒక్క హామీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేయలేదు। ఆనాడేమో ఎలక్షన్ ప్రచారంలో అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించిన కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులకు మాత్రం మొండి చేయి చూపించింది। డిసెంబర్ 9వ తారీఖునే 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తామన్నారు। ఇవాళకి 100 రోజులు దాటింది। బాండ్ పేపర్లు రాసిచ్చిండ్రు, నోటరీ డాక్యుమెంట్లు తెచ్చి ప్రజల్ని నమ్మిచ్చిండ్రు, మోసం చేసింది ఇవాళ। ఆ రోజేమో బాండ్ పేపర్లలో ఇంటింటికి తెచ్చి ఇగో మేము ఎక్కంగానే మొదలే 2 లక్షలు మాఫీ చేస్తామన్నారు। ఇవాళ 100 రోజులు దాటినా ఒక్క రూపాయి రుణమాఫీ చేసిన పరిస్థితి లేదు, ఒక అడుగు ముందుకు పడ్డ పరిస్థితి లేదు। साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत में खुश्क साली जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के हालात अबतर हैं। किसान 25 से 30,000 रुपये कर्ज लेकर ज़राअत कर रहे हैं। बैंक से कर्ज न मिलने पर खानगी अफराद से कर्ज लिया है। लाखों एकड़ आराजी सूख रही है। ये हुकूमत ख्वाब गफलत में है। मुनासिब वक्त पर पानी नहीं दिया जा रहा है। कालेश्वरम से 100 TMC पानी लेने की गुंजाइश है, लेकिन लिफ्ट नहीं कर रहे हैं। सुतून में शगाफ का बहाना बनाकर सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद ही रबी मौसम का आगाज हुआ। अगर हुकूमत संजीदा है तो किसानों के बारे में फौरन जायजा इजलास लें और किसानों को 2 लाख रुपए के कर्ज माफ करने का ऐलान पर फौरन अमल किया जाए। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि साजिश करते हुए झूठी खबरें शाये करने वाले यूट्यूब चैनल्स पर क्रिमिनल मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ऐसे यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ हित के इज्जत का भी दावा किया जाएगा। KCR ने कहा कि काफ़ी तौर पर उनकी शख्सियत और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम चैनल्स कर रहे हैं। झूठी खबरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ गूगल से भी शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे चैनल से तेलंगाना अवाम भी मुतहर्रिक रहें। BRS पार्टी के सरबराह का खानदान 20 साल में पहली बार लोकसभा इंतखाबात से दूर है। 20 साल में KCR के खानदान से कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात में KCR खानदान से कोई न कोई मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इस बार कोई भी मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। कविता को निजामाबाद से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में मुकाबले से दूर रखा गया। जोगीपल्ली संतोष कुमार जो राज्यसभा के रुकन थे, 12 अप्रैल को उनकी मियाद खत्म हो रही है। पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों में KCR के खानदान का कोई भी फर्द नहीं होगा। पार्टी के मौजूदा हालात को देखते हुए मौजूदा अरकान पार्लियामेंट भी मुकाबला करने से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के से T पद्मराव को उम्मीदवार बनाने के ऐलान के बाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान मुक़न्नना ने T पद्मराव से मुलाकात की और उनके हक में काम करने का ऐलान किया। इस मौके पर पद्मराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद में BRS कायदीन को हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत से नाम हुआ है। KCR ने जब उनके नाम का ऐलान किया तो अवाम से अच्छा रद्द अमल सामने आया है।
पद्मा राव ने कहा कि वो रुकने असेंबली हैं, लेकिन उनके मकान पर बरखी कटौती हो रही है। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद हल्के के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद का पूरा हल्का उनका मकान है। पद्मा राव ने कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आम बात है, आने वाली हुकूमत बीआरएस की होगी। उन्होंने कहा कि दानम नागेंद्र के बारे में बात करने के लिए शर्म महसूस हो रही है। खैरताबाद की आवाम सबक सिखाएगी। इस मौके पर बीआरएस लीडर मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, एम गोपीनाथ, के वेंकटेश के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। साबिक रुकन राज्यसभा जोगीपल्ली संतोष कुमार के खिलाफ नोयोगा कंपनी की शिकायत पर बंजारा हिल रोड नंबर 14 पर जमीन के जाली दस्तावेजात के साथ हासिल करने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसकी तहकीकात की जा रही है। हफ्ते की रात को 8:30 से 9:30 तक रियासती सेक्रेटेरिएट्स के लाइट्स को बंद रखते हुए अर्थ और का हिस्सा लिया गया। महकमे जंगलात व माहौलियात के सेक्रेटरी वानी प्रसाद के अलावा दीगर आला ओहदेदार और सेक्रेटेरिएट के अमले ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले हर काम से जिसमें आलूदगी में कमी वाक़ हो, इसको बराबर करना चाहिए। हैदराबाद के दोनों शहरों में होली त्यौहार के मौके पर शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। इतवार की शाम 6 बजे से 20 मार्च की सुबह 6 बजे तक शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा। पुलिस ने अहकाम जारी किए हैं। बार एंड रेस्टोरेंट और सेंधी खानों को बंद रखा जाएगा। पुलिस ने बताया कि होली के मौके पर त्यौहार की खुशी में दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। सड़कों पर खुलेआम रंग न खेलें। सड़कों पर जाने वालों पर रंग फेंका गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप बनाकर सड़कों पर न घूमने की भी हिदायत दी गई है। जिले महबूबनगर में मुकामी अफराद की जानिब से आज दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इनके अलावा सियासी कायदीन व मुकामी अफराद की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। टोली चौकी हकीमपेट के इलाके में मुकामी मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानान में मुतल्लिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। खादर अली बेग थिएटर फाउंडेशन और खादर अली बेग थिएटर फेस्टिवल की सदर नशीन बेगम रजिया बेग का इतवार की सुबह मुरादनगर हैदराबाद में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा इतवार के दिन बाद नमाज शाह उनकी ही रिहाइशगाह में अदा की जाएगी और तदफीन फर्स्ट लांसर कब्रिस्तान में अमल में आएगी। उनके फर्जंद मोहम्मद अली बेग, बदमशरी और दूसरे अरकान ख़ानदान से थिएटर से जुड़ी कई शख्सियात ने ताज़ियती इजहार किया है। मल्लेपल्ली के इलाके में एक मकान से 16 तोले के तलाई जेवरात और दीगर अशिया का सरका कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मल्लेपल्ली में वाक़े मस्जिद घोटाला के करीब के मकान को सारिकों ने अपना निशाना बनाया और करीब 16 तोले के सोने के जेवरात, 2.5 लाख रुपए नकद रकम और बैरूनी करेंसी 3,000 रुपयों के अलावा दीगर अशिया का सरका कर लिया गया। हबीबनगर पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। जनाब सैयद गुलाम अहमद समदानी, सदर इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बानोनगर या खुदपुरा
वो ख़दीम रुकन MIM का इतवार की सुबह अचानक इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा मदीना मस्जिद बानो नगर में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई और मुत्तसिल कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, साबिक रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के अलावा मुकामी काउंसलर्स और अवाम की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। देही इलाकों में मकानात के तामीराती कामों को ना रोका जाए। खरीबी तालाबों से अवाम को मुफ्त रेती, कलेक्टर्स को हिदायत, अहकामात जारी। किसानों को नजरअंदाज किया गया तो चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम करने, हरीश राव का इंतबाह। रेवंत रेड्डी सियासी गेट नहीं बल्कि किसानों के लिए गेट खोलें। झूठी खबरें शाये करने वाले YouTube चैनल्स पर कार्रवाई की जाए। क्रिमिनल मुकदमात और हितक-इज़्ज़त का दावा पेश करने KTR का इंतबाह। और मल्लेपल्ली में एक मकान में सरखे की वारदात, 16 तोले तलाई जेवरात, 2.5 लाख रुपए नकद रकम और 3,000 रुपए की बैरूनी करेंसी का सरका। पुलिस मसरूफ़े तहकीक़ात। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।